Good morning, student. Now, in the previous, we completed Heron's formula, and after Heron's formula, the next chapter is the quadrilateral. Now, in this session 2021, in this session means the deleted part. In the deleted part, there is no deleted portion of this lesson quadrilateral. It means that the quadrilateral is the most important chapter in 9th standard. Okay. Now, in quadrilateral, you know that equilateral. Lateral is considered as a sides, length of the sides. Equal. Equilateral, equal sides. Equilateral triangle. The triangle having equal sides, that is equilateral. Similarly, here quadrilateral. Quadri, 4. Quadri means 4. Quadrant, 4 quadrant. Quadra, 4. So all these word is related with the 4. That is quadri means 4 and lateral means sides. It means that the figure, a close figure having 4 sides is called as a quadrilateral. Simple. Where is simple definition? A quadrilateral is a close figure having 4 sides is called as a quadrilateral. अब quadrilateral means 4 sides है और 4 sides है, इसका मतलब 4 एंगल भी बनेंगे वहां पे. Okay, it means that simple definition of the quadrilateral is a close figure having 4 sides is called as a quadrilateral having 4 sides and 4 angles also. Now, if we draw a diagram, simple diagram we draw. So this is of your quadrilateral. So this is of your ABCD. So quadrilateral ABCD and it is represented as quadrilateral ABCD. Serially ABCD or we can write ABCD. इस तरह से भी लिख सकते हैं. A इसको B देंगे, इसको C देंगे और इसको देंगे D. तो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइए या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइए, बट द नेम शुड बी इन द सीरियल मैनर ABCD or ABCD. So this is of your quadrilateral. Now in this lesson in 9th standard, so which topic we want to learn in this chapter? So quadrilateral you already learn in the 8th standard, the types of the quadrilateral, properties of the quadrilateral and some basic informations also there. Some constructions of the quadrilateral also you learn in the 9th standard. 9th standard में हमने already learn कर लिया है. हमने already उसको study किया है how to construct the quadrilateral, how to construct the quadrilateral when 4 sides are given and one diagonal is given. And near about all the types we already construct in the 8th standard. Now in this standard what we learn, so this quadrilateral is divided into total 5 parts. इसमें हम लोगों को 5 कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ने हैं. सबसे पहला फर्स्ट एंगल सम प्रॉपर्टी. अब एंगल सम प्रॉपर्टी आप बोलोगे सर एंगल सम प्रॉपर्टी तो हमने ऑलरेडी पढ़ ली, बट it is the for the triangle. Sum of the angles of triangle is 180 degree. Here we learn angle sum property of a quadrilateral. Angle sum property of quadrilateral. So in quadrilateral, sum of the angles, sum of all interior angles of a quadrilateral is 360 degree. 360, 360 degree. The second part is the types of the quadrilateral. The second part is the types of quadrilateral. Quadrilateral की कितने types है और वो कौन से types है, कितने और कौन से, कौन से type के कौन से quadrilateral है, that we will find. After that we can understood the third part of this lesson is properties of parallelogram.
अब ये पैरेललोग्राम जो वर्ड हमने लिखा है, बिकॉज पैरेललोग्राम इज वन ऑफ द क्वाड्रिलैटरल एंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबका बाप है क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम, सबका पापा मेन वहीं से निकले हैं पूरे क्वाड्रिलैटरल इधर उधर जाके। सभी क्वाड्रिलैटरल का टाइप कहां से फॉर्म हुआ है? पैरेललोग्राम से। ये प्रॉपर्टी है तो ये होगा, पैरेललोग्राम में ये है तो रेक्टेंगल बनेगा, पैरेललोग्राम में ये है तो रोम्बस बनेगा, पैरेललोग्राम में ये है तो स्क्वायर बनेगा, पैरेललोग्राम में ये है तो ट्रेपेजियम। तो इस तरह से पैरेललोग्राम है सबका बाप। ओके, मींस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ना सबसे जरूरी है। अब पैरेललोग्राम हो गया पापा और बाकी के हो गए सन, तो नेचुरली पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टीज है वो सभी प्रॉपर्टीज सभी सन को लगेंगी, बराबर है। तो वैसे ही यहां पे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग पैरेललोग्राम की, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के बाद में हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, किसको हम पैरेललोग्राम बोल सकेंगे, कौन है ऐसा क्वाड्रिलैटरल की जो पैरेललोग्राम कहलाता है? Means which quadrilateral is a parallelogram, that will be seen in the test of the parallelogram, and the सबसे लास्ट वाला पार्ट रहेगा इसका मिड पॉइंट थ्योरम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट क्या है एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस थ्योरम, दैट वी विल अंडरस्टूड इन द मिड पॉइंट थ्योरम। So everyone understood that which topics we have to include in this lesson. The first is the angle sum property of a quadrilateral, the second is the types of the quadrilateral, the third is the properties of the parallelogram, fourth is the test of the parallelogram, and the fifth is the mid-point theorem. Now here we start the first part, that is angle sum property. Okay, सबसे पहला पार्ट हम लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अब डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलैटरल हमने दे दिया है आपको। डेफिनेशन क्या डेफिनेशन बोला है? अ क्लोज फिगर, अ क्लोज फिगर हैविंग फोर sides is called a quadrilateral. Is called quadrilateral. आपको बताया मैंने, ये आपको बताया। क्वाड्री मींस फोर, लैटरल मींस साइड। तो ऐसी फिगर जिसमें फोर साइड है उसको हम कहेंगे क्वाड्रिलैटरल। सो दिस इज ऑफ योर डेफिनेशन। सिंपल वी विल राइट हियर, सिंपल व्हाट वी राइट हियर, क्वाड्रिलैटरल ABCD. सो दिस इज ऑफ योर क्वाड्रिलैटरल ABCD and it is represented by, क्या लिखेंगे? क्वाड्रिलैटरल ABCD। अब इस क्वाड्रिलैटरल में फोर साइड कौन सी है? पहली होगी आपकी AB, दूसरी BC, तीसरी CD और चौथी क्या होगी? AD. These are the four sides of the quadrilateral. After that four angles are also there, angle A, angle B, angle C and angle D. So these are the four angles of the quadrilateral. Means इस quadrilateral में फोर साइड्स और फोर एंगल्स है। हम सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, दैट वी विल बी लर्न हियर। नाउ यू नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, तो हियर वी राइट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल। शॉर्ट में लिखा हमने यहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। तो इसका हम लोग स्टेटमेंट लिख देते हैं, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। मींस सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमने लिखा है यहां पे गिवन, थ्योरम के तौर पे देखेंगे इसको हम लोग। गिवन लिखा, तो यहां पे मुझे क्वाड्रिलैटरल चाहिए, सो वन क्वाड्रिलैटरल वी ड्रॉ हियर, क्वाड्रिलैटरल ABCD. ओके, नाउ गिवन ABCD is a quadrilateral. सिंपल। क्या लिखा हमने?
ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। सिंपल, एकदम सिंपल। क्या प्रूफ करना है मुझे? टू प्रूव। क्या प्रूफ करेंगे? टू प्रूव व्हाट वी वांट टू प्रूव सम ऑफ द एंगल्स। तो इसके एंगल्स देखेंगे, एंगल A प्लस B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री दैट वी वांट टू प्रूव। अब इसके लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन क्या किया, हमने एक डायगोनल बना दिया। चलो जरा चेक करो जरा, AC हमने डायगोनल बना लिया। अब डायगोनल का डेफिनेशन आपको जानते हैं, क्या है डायगोनल का डेफिनेशन? इट इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द अपोजिट वर्टेक्स। अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है, दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज अ डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल और एनी फिगर। ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं है क्योंकि अपोजिट ये नहीं है, उसके पास अपोजिट वर्टाइसेस नहीं है, सब एडजेसेंट वर्टाइसेस है। तो ट्रायंगल में देयर इज नो डायगोनल। तो जहां पे 4 साइड्स है, जहां पे 4 एंगल्स है, वहीं पर ही डायगोनल्स है। 4 एंगल्स या फिर उससे ज्यादा एंगल्स। पेंटागन में भी डायगोनल्स आएंगे, हेक्सागन में भी डायगोनल्स आएंगे, सेप्टागन में भी डायगोनल्स आएंगे, ऑक्टागन में डायगोनल्स आएंगे, नेनागन में डायगोनल्स आएंगे, डेकागन में भी डायगोनल्स आएंगे। मींस these diagrams having the diagonal because they having the opposite vertices। अपोजिट वर्टेक्स है तो डायगोनल है, वैसे ही यहां पे हमने डायगोनल निकाल लिया है AC। अब AC डायगोनल निकाल लिया, मुझे यहां पे 2 ट्रायंगल दिखे। कौन से ट्रायंगल? यहां पे नाम दे रहा हूं मैं, यहां पे X, या फिर यहां पे छोटा सा नाम दे देते हैं, यहां पे ABC, और इसको नाम दिया X, Y और Z। एकदम शॉर्ट में बताऊंगा यहां पर। तो यहां पे हमने सबसे पहले एक ट्रायंगल कंसीडर किया, इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल लिया। यू नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट? 180 डिग्री। 180 डिग्री। देयरफॉर हियर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी यहां पे लगा दिया हमने। अब एंगल A का मेजरमेंट कितना है? स्मॉल a, क्योंकि हमने ये वाला एंगल लिया है, ना कि पूरा नहीं लिया हमने। कौन सा लिया? ये वाला लिया। एंड ट्रायंगल ABC का एंगल A लिया, प्लस B का मेजरमेंट दिख रहा है मुझे स्मॉल b, और C का ये वाला जो साइड का मेजरमेंट है वो स्मॉल c है, दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, दिस इज ऑफ इक्वेशन नंबर 1। गॉट इट? Now we will consider another triangle. In triangle ADC, दूसरा ट्रायंगल लिया हमने ADC। अब ADC में भी चेक करेंगे, एंगल A प्लस D प्लस C is equals to also 180 degree. Here angle sum property, ASP, angle sum property. Here what we write here? Angle A। अब ADC का एंगल A मींस कौन सा है? Z है। एंगल ADC का D मींस क्या है? Y है। और एंगल ADC का C मींस क्या है? X है। इज इक्वल्स टू व्हाट? 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 दिया। नाउ वी विल ऐड दिस बोथ द इक्वेशन। सो इक्वेशन 1 प्लस 2 करेंगे। 1 प्लस 2 किया तो हमको लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे, और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे। अब लेफ्ट को यदि ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? A प्लस Z प्लस B प्लस Y प्लस C प्लस X इज इक्वल्स टू 180 प्लस 180 360 डिग्री। देखेंगे टोटल हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 and 6 all angles we are getting. Now A plus Z, so A plus Z become angle A, so here we write angle A. B angle B, here we write angle B. Y angle D, and C plus Z become angle C, that is of equals to 360 degree. Therefore sum of the angles of a quadrilateral is what? 360 degree. ध्यान में आया? स्टार्ट। तो चलो आइए एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के ऊपर। हमने अभी एंगल सम प्रॉपर्टी देखा है। कौन सा एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है?
सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। इसके ऊपर एक एग्जांपल लेंगे। इन द रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर इन रेशियो। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, सिंपल सा एग्जांपल। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल आर इन रेशियो, क्या रेशियो में है? 3:5, 3:5:9:13. Okay, the angles of a quadrilateral are in ratio 3:5:9:13. Then find all angles of quadrilateral. एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, सभी एंगल्स हमको निकालना है, सभी एंगल्स के मेजरमेंट हमको फाइंड आउट करना है। तो यहां पे एक सिंपल सा क्वाड्रिलैटरल हम कंसीडर करेंगे सॉल्यूशन के तौर पे। सॉल्यूशन में क्वाड्रिलैटरल कंसीडर किया हमने। लेट क्वाड्रिलैटरल ABCD, सिंपल सा क्वाड्रिलैटरल हमने क्या कंसीडर किया? ABCD कंसीडर किया। नाउ यू नो दैट द रेशियो इज व्हाट? 3:5:9:13. द रेशियो, द एंगल्स आर इन रेशियो, द एंगल्स आर इन रेशियो। कौन सा रेशियो में दिया है? 3:5:9:13. तो नेचुरली रेशियो दिया है तो कॉमन मल्टीपल हम तो लेते ही है। तो कॉमन मल्टीपल क्या लेंगे हम लोग? x लेंगे कॉमन मल्टीपल। नाउ इफ द कॉमन मल्टीपल बी x, देयरफॉर एंगल A is equals to 3x, B is equals to 5x, C is equals to 9x and angle D is equals to what? 13x. मिल गए सभी एंगल्स, मिल गए हमको। अब सभी एंगल्स मिलने के बाद हम क्या करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल A प्लस B प्लस C प्लस एंगल D is equals to 360 degree. This is angle sum property of quadrilateral. Quadrilateral के angle sum property लगाया हमने। Here what? 3x plus 5x plus 9x plus 13x is equals to 360 degree. Now 3 plus 5 8, 8 plus 9 17 and 17 plus 13, that is of equals to 30. So we get here 30x is equals to 360 degree. अब 30 को ट्रांसफर किया तो x is equals to 360 divided by 30, that is of equals to 12. तो कॉमन मल्टीपल हो गया हमारा 12. Therefore what is the value of angle A? So angle A is equals to, कितना एंगल A दिया है आपका? 3x. So 3x का मतलब क्या हो गया? 3 into 12 means what we will get here? 36 degree. 12 3s are 36. Now second angle is B. B कितना दिया है? 5x. तो 5x means क्या? 5 into 12 कितना हो गया? 12 5s are कितना होता है? 60. तो 60 डिग्री का हो गया। तीसरा एंगल C, कितना है एंगल C? 9x. So 9x means 9 into 12, that is of equals to 9 into 12 means what? 108 degree. And the last one is angle D is equals to what? 13x, that is 13 into 12, that is of equals to 156. So in this way the sum means all the angles are of measure. Angle A is equals to 36 degree, angle B is equals to 60 degree, angle C is equals to 108 degree and angle D is equals to 156 degree.